Hello everyone, my name is Mustafa Fayaz and I welcome you back to my channel for another video. Today I have a very special guest with me, Mr. Najam Usmani. He's from the United States of America. He's a US national and today we're going to be discussing the landscape of the US in comparison to that of Pakistan. So I'm going to be giving you a brief introduction of Mr. Najam Usmani. So he left Pakistan at a very young age and he's been living there for about 30 to 35 years. And I'm going to be asking him certain questions about the industry. So Mr. Najam Usmani, welcome to Pakistan. Thank you. And can you briefly tell a bit about yourself to our audience? Well, thanks for having me. Certainly it's a pleasure being with you. मैं पाकिस्तान से I was 19 years old. I used to watch a television sitcom called Perfect Strangers. And they used to see Chicago skylines, and that's when my dream started to be in America. तो 19 years की मैं एज में अमेरिका चला गया था. After I finished my college, I moved to Chicago. Chicago में मैंने corporate job करी. I was being trained to be a high-flying corporate executive. अब उसके बाद लेकिन मुझे लगा कि मेरा जो खून है वो business की तरफ है. तो फिर मैंने अपनी एक tax franchise start करी हमने. And then over the next 14 years, I would build it to about 400 locations. Wow. फिर अब थक गया उससे के साथ तो फिर मैंने कहा कि रियल एस्टेट में आते हैं. तो, हाँ, पिछले 5 सालों में फिर मैं रियल एस्टेट में रहा हूँ. And I'm also involved in community service work and political activities. But that's छोटा सा हमारा जो भी है. But it's been a great journey and I love coming back to Pakistan and sharing my knowledge. I wanna mention something over here. He's a perfect example of the American dream. And also, apart from his business journey, he's very much involved in US politics as well. So you can see the pictures of him being involved in the United States of America. And you can also check out his Instagram page for all the information, his website. I'm going to put the link over here. So, Mr. Najam Usmani, I have a few questions that I believe people over here in Pakistan have in their mind about the US, about there being a lot of discussion of taking investment out of Pakistan. So I want to know, what is the main difference between real estate in the United States versus that in Pakistan? देखो मुस्तफा, मैंने जो चीज़ें छोटी मोटी मैंने सीखी पाकिस्तान के रियल एस्टेट के हवाले से, मेरे ख्याल में अभी बहुत प्रोसेसेस हमारे इमेच्योर हैं. यूएस के अंदर देयर इज अ प्रॉपर कंप्लायंस सिस्टम इन प्लेस. दे यूज डेट एज अ लेवरेज, नॉट एज अ लायबिलिटी. बहुत बड़ी चीज़ है. कैश ऑन कैश रिटर्न्स मीन अ लॉट. तो वहाँ के प्रोसेसेस में समथिंग एज बेसिक एज अगर आप घर बनाते हैं और कॉन्ट्रैक्टर को अपने पैसे नहीं दिए तो कॉन्ट्रैक्टर कैन प्लेस अ लीन ऑन द प्रॉपर्टी एंड यू कैन नॉट सेल द प्रॉपर्टी until that lien is satisfied. Mostly everything in the United States is done on paper. Proper agreement होता है, legal contracts होते हैं और उसके लिए उसको ख़राब नहीं समझना चाहिए because it protects both parties. Most of the time problem happens because communication के gaps होते हैं और हम कुछ बोलते हैं, दूसरा कुछ समझ रहा होता है. And this happens not just in real estate with anything. तो मेरा भी हमेशा से ये हो रहा है कि जो भी आप एग्री करते हैं उसको आप कागज़ पे लिखें, एग्रीमेंट करें, because it has to be a win-win situation for all. So US के जो प्रोसेसेस हैं बहुत मेच्योर हैं और मेरे नहीं ख्याल कि वी नीड टू रीइन्वेंट द व्हील. यहाँ पे अगर आप डेट को लेवरेज करें प्रॉपर तरीके से, बैंक्स को आप स्टेबलाइज करें, सिक्योरिटी को स्टेबलाइज करें, तो देयर इज़ नो रीज़न कि पाकिस्तान में वो अब तो इंटरनेट की वजह से इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि वी डोंट नीड टू बी क्लोज्ड ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. नाजम भाई, जो ये वाला पॉइंट है बैंक्स वाला, बैंक्स को तो हमारे यहाँ पे बड़ा बुरा समझा जाता है कि बैंक्स के साथ काम नहीं करना. कुछ उसमें लोगों का रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू भी है और कुछ उसके अंदर लोगों को डर भी लगता है और डॉक्यूमेंटेशन भी यहाँ पे बड़ी वीक है, जिसकी वजह से बैंक्स भी इतना कंफर्टेबल नहीं होते हर किसी को लोन देने में या इन्वेस्ट करने में. तो उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है? अच्छा सवाल है. देखो वही बात है कि वंस अगेन अब जैसे वहाँ पे एक प्रॉपर क्रेडिट सिस्टम है, एक स्कोरिंग सिस्टम है, उस पर बेस करते हैं. कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखी जाती है, मैनेजमेंट का बायो देखा जाता है, लोग पिछले क्या करके आ चुके हैं वो देखा जाता है. तो क्रेडिबिलिटी एंड आपकी जो बायो है इट मैटर्स. तो हम श्योर कि बहुत से ऐसे लोग यहाँ पे काम कर रहे होंगे कि जिन्होंने उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से. बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो भी लोग वो किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उन्हें अब बाय बुक्स अपने आप को करेक्ट करने, सो दैट these institutions have faith in you. क्योंकि यूएस के अंदर जो मैंने आपसे भी कुछ बात की है, जो मुझे समझ में आ रहा है कि वहाँ पे हर चीज़ happens by books. हमारे यहाँ पे छुपाने का सिस्टम ज़्यादा है. तो आपके ख्याल से वो क्या ग्रोथ को रोकता है? बिल्कुल रोकता है. और जैसे इफ़ आई कैन फिनिश माई थॉट, वो ये थी कि प्रोसेस इस्टेब्लिश हैं
किसी भी मुल्क को, किसी भी सोसाइटी को उसको देने में आने में टाइम लगता है, लेकिन हमने एक अनलिमिटेड टाइम लाइन नहीं देना किसी भी चीज़ को, क्योंकि द वर्ल्ड इज़ मूविंग एट अ वेरी फास्ट पेस. तो यूएस के अंदर और पाकिस्तान में जो डिफरेंसेस मैं देखता हूँ, ऑब्वियसली लीगैलिटी और पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन के इशूज़, डेट को लेवरेज नहीं करना, बैंक्स को बुरा समझना. देखो, एक प्रॉपर कैपिटलिस्टिक सोसाइटी जो होती है उसमें ये होता है कि जब आपकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर बीइंग मेड अवेलेबल टू एवरीबॉडी, द कॉस्ट ऑफ इट कम्स डाउन. टेक्नोलॉजी के सेक्टर अगर आप देखें तो एक ज़माने में जब मैं अमेरिका गया था तो उस ज़माने में $3 पर मिनट पे हम कॉल करते थे पाकिस्तान. अब वो कॉल हम फ्री पे करते हैं व्हाट्सएप पे. तो टेक्नोलॉजी हैज़ प्रूवन कि अगर आप मैसेज को चीज़ें अवेलेबल करते हो तो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम्स डाउन एंड देन यू मेक मनी ऑन मैसेज, ऑन वॉल्यूम. तो ये तीन चार चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें हैं डिफरेंस. लेकिन अच्छी बात ये कि इफ़ यू चूज़ टू मेक अप योर माइंड एंड स्ट्रेंथन योर इंस्टीट्यूशंस एंड देन माइंड सेट, और जहाँ पे इंटरेस्ट की बात है आप उसको डिफरेंट नाम से कर सकें. इस्लामिक फाइनेंसिंग बहुत बड़ी चीज़ है अमेरिका के अंदर, लेकिन वो वही होता है कि वो बेसिकली दे बिल्ड इट अप इनटू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. सो दे डोंट कॉल इट इंटरेस्ट, दे कॉल इट समथिंग एल्स. बट इन द एंड कॉन्सेप्ट वही है कि अगर मैं आज एक चीज़ 1 लाख की खरीद रहा हूँ तो और मुझे कोई पैसे बोरो कर रहा है तो मुझे उसको कुछ तो बना के देना है, तो आप 1,20,000 की बेच दें और उसकी पेमेंट बना. बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं कि जो वो इंटरेस्ट है उसको आप एज अ कॉस्ट लेने या एज एन एंड यू कैन चेंज द टर्म. तो वो इस्लामिक फाइनेंसिंग अमेरिका में ऐसी चलती है. अच्छा, यानी कि वहाँ पे भी इस्लामिक बिल्कुल है, कॉन्सेप्ट है. बिल्कुल है, क्योंकि और इंटरेस्ट का जो मसला इट कुड बी कंट्रोवर्शियल, लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा है बनिस्बत जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है यूएस के अंदर. यूएस के अंदर आप इजीली 3-4% पे आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल जाता है. वाओ. अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर आपका 3 से 4% है तो मैं तो सारे दिन पैसे लोगों से लेता रहूँ, because if I can take money at 3 to 4% and make 40-50%, 60%, you know, then you get to make a lot of money. That sounds too good to be true. It is. अच्छा, तो नजम भाई एक और बात बताएं. एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी आया कि एक हमारे यहाँ पे ना एक डिलेमा है कि जो रियल एस्टेट का सेक्टर है ये सिर्फ अमीरों के लिए. तो आई नो फॉर अ फैक्ट कि यू समबडी who's been there through rags to riches. तो क्या ये बात ठीक है कि यहाँ पे सिर्फ पैसे वाले लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी के, क्या नॉर्मल लोग जिनकी इनकम उतनी ज़्यादा नहीं है वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है ये. देखो, अभी इंटरनेट की वजह से अमेरिका में भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं. मिसाल क्राउड फंडिंग इज़ अ बिग डील, क्योंकि पहले अमेरिका में भी ये था कि भी जो बड़ा कैपिटल है वही इन्वेस्ट कर सकता है, तो एवरीबॉडी इज सॉर्ट ऑफ शाइड अवे फ्रॉम रियल एस्टेट. लेकिन अब क्राउड फंडिंग के प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं. मुझे भी नहीं पता कि पाकिस्तान में है कि नहीं है, लेकिन क्राउड फंडिंग के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें एक आम आदमी भी $20,000, $25,000 से they can participate in multi-million-dollar buildings. So for example, you know, a friend of mine, he just did a project in Manhattan, $97 million का project था उसका, and his capital was as little as 25,000. और वो इंटरनेट प्लेटफॉर्म को यूज़ करके he's seeking money from everybody. So वो लोग भी जिनके पास पैसा कम है वो भी फील करते हैं प्राइड ऑफ ओनरशिप कि मैं I'm part of it. Nobody knows कि आपके 25,000 लगाए, 25 million लगाए, लेकिन you know कि you own part of an asset in Manhattan. तो इट्स अ प्राइड थिंग. तो वो प्लेटफॉर्म आप यहाँ पे भी कर सकते हैं क्रिएट. यानी कि व्यूअर्स आप इस बात को नोट करें कि एक आदमी ने $25,000 इन पॉकेट होते हुए $97 million का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया. दिस शोज के टेक्नोलॉजी जैसे बाकी इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट कर रही है वैसे ही रियल एस्टेट इंडस्ट्री को भी इम्पैक्ट कर रही है. और क्राउड फंडिंग जो अभी नजम भाई ने एक टर्म यहाँ पे यूज़ किया उसका मैं थोड़ा सा बता दूँगा. इट्स बेसिकली यू एस्टैब्लिश अ फंड ऑनलाइन जिसमें इफ पीपल लाइक योर प्रोडक्ट और योर प्रोजेक्ट दे कैन इन्वेस्ट. Yes, ऐसा ही है. that is true. और उसके अंदर यू ओपनली टेल देम कि यार ये आपके रिटर्न्स हैं, दिस इज हाउ मच यू विल मेक इफ यू इन्वेस्ट दिस मच मनी. तो ये चीज़ें अभी हमारे लिए पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन वो लोग जो इनको अप्लाई करेंगे वो आगे निकल जाएंगे.